हेलो दोस्तों, आज हम लोग मोमेंट्स का चैप्टर 5 पे स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग दी हैप्पी प्रिंस, जो ऑस्कर विल्डे के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम देखेंगे हैप्पी प्रिंस कौन था और उसका क्या स्थिति थी। तो आइए इसका समरी स्टार्ट करते हैं। The happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphire for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? Happy prince एक सुंदर मूर्ति थी। उसके शरीर पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ था। उसकी आंखों के स्थान पर दो नीलमणियाँ जड़ी थी तथा उसकी तलवार के मुठ पर एक लाल मणि थी। प्रिंस ने क्यों चाहा कि उसका सारा सोना तथा बहुमूल्य पत्थरों को ले लिया जाए। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। High above the city on a tall town stood the statue of Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of the fine gold. For eyes he had two bright spheres and a large red ruby glued on his sword hilt. Hilt मतलब होता है हैंडल। यहाँ पे लिख देते हैं इसका। हिल्ट मतलब होता है हैंडल। All night there flew over the city a little swallow. Swallow एक चिड़िया का नाम है जो अबाबिल होता है। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparation. Then he saved the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. Plenty मतलब होता है पर्याप्त। So he alighted just between the feet of the happy prince. आइए इसका हिंदी देखते हैं। नगर के एक भाग में ऊंचे स्तंभ पर एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति स्थापित थी। उसके संपूर्ण शरीर पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ था तथा उसकी आंखों के स्थान पर दो चमकती नीलमणियाँ थीं। एक रात नगर के ऊपर एक अबाबिल उड़कर आया। उसके मित्र 6 सप्ताह पूर्व ही मिस्र चले गए थे, पर उसके पीछे ठहरना पड़ा था। फिर उसने भी मिस्र जाने का विचार किया। सारा दिन वह उड़ता रहा और रात को नगर में पहुंचा। मैं ठहरूंगा कहाँ, वह स्वयं से बोला। मुझे आशा है कि नगर में तैयारियां कर ली गई हैं। फिर उसे एक ऊंचे स्तंभ पर लगी मूर्ति दिखाई दी। मैं यहीं रात बिता लूँगा। वह चीखा, यह स्थान है, ढेर सी ताज़ा हवा है। इस कारण वह हैप्पी प्रिंस की टांगों के ठीक बीच में उतर आया। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was waiting, his head under his wings, a last drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of a statue if cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. Determine मतलब निर्णय लिया। मेरे पास एक सुनहरा शयन कक्ष है। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर मंद स्वर में स्वयं से कहा तथा सोने की तैयारी करने लगा। जब वह अपने पंखों के नीचे अपना सिर रखने वाला था कि एक बड़ी सी बूंद उस पर गिरी। कितनी विचित्र बात है, वह बोला। आकाश में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है, सितारे भी बिल्कुल साफ और चमकदार है, और फिर भी वर्षा हो रही है। तभी एक और बूंद उस पर टपकी। ऐसी मूर्तियों का क्या उपयोग यदि वर्षा से बचा नहीं सकती, वह बोला। मुझे किसी चिमनी के ऊपरी भाग को खोजना होगा, और उसने उड़ जाने का निर्णय लिया। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and said, Ah, what did he see? The eyes of Happy Prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the Happy Prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. When I was alive and human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the place where sorrow is not allowed to enter. Sorrow मतलब होता है दुख. My courtier called me the happy prince, and happy indeed I was. Indeed मतलब होता है वास्तव में. So I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. Misery मतलब होता है दुख दर्द मुसीबत.
and though my heart is made of lead, and yet I cannot choose but weep. What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. पर उसके पंख खुलने से पूर्व ही एक तीसरी बूंद उस पर आ गिरी और उसने ऊपर की ओर दृष्टि की तथा देखा। उसने कैसा दृश्य देखा! हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से तर थी तथा उसके सुनहरे गालों पर से आंसू नीचे बह रहे थे। उसका चेहरा चांदनी में इतना सुंदर दिख रहा था कि छोटे से अबाबिल पक्षी को उस पर दया आ गई। तुम कौन हो? उसने कहा। मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर तुम रो क्यों रहे हो? अबाबिल ने पूछा। तुमने तो मुझे भिगो ही दिया जब मैं जीवित था तथा मेरे अंदर एक मानवीय हृदय थी। मूर्ति ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या चीज़ है, क्योंकि मैं तो राजमहल में रहता था जहाँ दुख दर्द को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। मेरे दरबारीगण मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे तथा सचमुच मैं हैप्पी था। इस प्रकार मैं रहा तथा इसी दशा में मेरी मृत्यु हो गई, और अब जब मैं मर चुका हूँ उन लोगों ने मुझे यहाँ उतनी ऊंचाई पर रख दिया कि मैं अपने नगर की सारी क्रूरता तथा दरिद्रता को देख सकूँ, और यद्यपि मूर्ति के बारे में नहीं। यद्यपि मेरा हृदय सीसा धातु से बना है और फिर भी मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या क्या यह ठोस धातु सोने का नहीं है? अबाबिल पक्षी स्वयं से बोला। वह इतना विनयशील था कि उसने कोई टिप्पणी मूर्ति के बारे में नहीं की। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in little street there is a poor house. One of the windows is open through. I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she was coarse, red hand, all prickled by the needle. Prickle मतलब होता है चुभना। For she is seamstress. Seamstress मतलब होता है दर्जिन। Woman tailor. She is embroidering flower on a satin gown for the loveliest of the queen maid of honor, to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him orange. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened. Fastened मतलब होता है बंधा होना. To this pedestal I cannot move. अब इसका हिंदी होगा। मूर्ति ने अपनी मंद मधुर आवाज़ में कहना जारी रखा। दूर एक छोटी तंग गली में एक निर्धन का घर है। उसके घर की एक खिड़की खुली है तथा उसमें से मैं एक महिला को मेज पर बैठे देख सकता हूँ। उसका चेहरा पतला तथा सिकुड़ा है तथा उसके हाथ भद्दे और लाल हैं। वे सुई से बिंधे हुए हैं क्योंकि वह एक दर्जिन है। वह एक साटन से बने गाउन पर फूल काट रही है जो रानी की परिचारिका है। वह यह गाउन अगले शादी नृत्य में पहनेगी। कमरे के कोने में उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा है। उसे ज्वर है तथा वह अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। माँ के पास नदी का जल देने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए बच्चा रो रहा है। अबाबिल, क्या तुम उसके पास मेरी तलवार की मुठ से निकालकर लाल मणि नहीं पहुँचा दोगे? मेरी टांगें तो इस स्तंभ से बनी है और मैं हिल भी नहीं सकता। मिस्र में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। अबाबिल बोला। मेरे मित्र नील नदी पर उड़ रहे हैं तथा विशाल कमल के फलों से बातें कर रहे हैं। शीघ्र ही वे सोने चले जाएंगे। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down Nile, talking to the large lotus flowers. Soon they will go to the sea. बोल रहा है कि इसका दोस्त वेट कर रहा है सब नील में और सोने जा रहा है सब। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंस आस्क्ड द swallow to stay with him for one night and be his messenger. Messenger मतलब होता है दूत। The boy is so thirsty and the mother so sad. He said, I don't think I like boy, answered the swallow. I want to go to Egypt. प्रिंस ने पक्षी से कहा कि एक रात रुक जाओ और मेरे संदेशवाहक बन जाओ। वह बालक इतना प्यासा है और उसकी माँ कितनी उदास है। वह बोला, मुझे बालक पसंद नहीं। अबाबिल बोला, मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Agreed मतलब होना, सहमत होना। Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword. Sword मतलब होता है तलवार। And flew away with it in his beak over the roof of the town.
He passed by the cathedral town where the white marble angels were sculptured. He passed by the place and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. A hope I hope my dress will be ready in time for the estate ball, she said. I have ordered flower to embroider on it, but the seamstresses are so lazy. पर हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया कि छोटा हवाविल पक्षी भी उदास हो गया। यहाँ तो बहुत ठंड, वह बोला, पर वह प्रिंस के एक रात रुकने को राजी हो गया तथा उसका संदेश वाहक बन गया। धन्यवाद छोटे पक्षी, प्रिंस बोला। अबाबिल ने प्रिंस की तलवार से विशाल मणिक निकाली तथा उसे चोंच में दबाकर नगर की छतों के ऊपर लेकर उड़ गया। वह गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा जिस पर सफ़ेद संगमरमर में देवगढ़ खुदे हुए थे। वह महल के पास से गुजरा तथा उसने नृत्य का शोर सुना। एक सुंदर लड़की छज्जे पर अपने प्रेमी के साथ आई। मुझे आशा है कि मेरी ड्रेस शाही नृत्य समारोह पर पहनने के लिए समय पर तैयार हो जाएगी, वह बोले। मैंने उस पर फूल काटने को कह रखा है, पर दर्जनें बहुत आलसी होती हैं। He passed over the river and saw the lantern hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired in he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber. Slumber मतलब होता है sleep. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fall asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high. A spirit at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on the roof of the church steeple. स्टीपल मतलब होता है चर्च का सबसे ऊपर वाला भाग। वह नदी के ऊपर से उड़ा तथा उसने जलपोतों के मस्तूलों के ऊपर लालटेनें लटकती देखी। अंत में गरीब महिला के घर पर पहुंचा तथा उसने झांका। बालक अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था और उसकी माँ सो गई थी क्योंकि वह बहुत थकी थी। पक्षी अंदर फुदू कर चला गया तथा महिला की उंगली पर पहनने वाली कैंप के बगल में मेज पर वह विशाल लालमणि रख दी। फिर वह हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा तथा अपने पंखों से उसने बालक के माथे पर हवा की। अब मैं कितनी ठंडक महसूस कर रहा हूँ, बालक बोला। मैं अवश्य ही अब स्वस्थ हो रहा हूँगा। तथा वह मधुर नींद में चला गया। इसके पश्चात पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस आ गया तथा उसे बताया कि उसने क्या काम किया था। यह विचित्र बात है, वह बोला, पर मैं काफ़ी उष्ण महसूस कर रहा हूँ। यह इतनी सर्दी है, इसका कारण यह है कि तुमने एक नेक काम किया है, प्रिंस बोला। और छोटा पक्षी सोच में पड़ गया तथा फिर सो गया। सोच विचार करने पर उसे सदैव नींद आ जाती थी। जब दिन निकला वह उड़कर नदी पर गया तथा उसने स्नान किया। आज मैं मिस्र जाऊंगा, पक्षी बोला तथा इस विचार से वह उल्लासित हो गया। उसने सभी स्मारकों का परिभ्रमण किया तथा गिरजाघर की छत पर बनी मीनार पर काफ़ी समय तक बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to Happy Prince. Have you, have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night? I am waited for him in Egypt, answered the swallow. Far away across the city, I see a young man in garret. Garret मतलब होता है छत का सबसे ऊपर वाला भाग जिसको अटारी बोला जाता है. He is leaning over the desk covered with paper and the glass by his side. There is a bunch of withered violet. His hair is brown and crisp, and his lips are red as pomegranate. Pomegranate मतलब होता है अनार. And he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for a director of theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the
great, and his hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to young playwright. Also, I have no ruby, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sphere, which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered a swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. जब चांद निकला तो वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। क्या आप मेरे द्वारा मिस्र में कोई काम करवाना चाहते हैं? तो वह बोला, मैं यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मिस्र में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। अबाबिल बोला। अबाबिल पक्षी प्रिंस बोला, नगर के सुदूर छोर पर मुझे एक युवक अटारी पर बैठा दिखाई दे रहा है। वह अपनी डेस्क के ऊपर पड़े कागजों पर झुका हुआ है तथा उसके बगल में रखे गिलास में मुरझाए नीले फूलों का गुच्छा रखा है। उसके बाल भूरे तथा सख्त हैं तथा उसके होंठ अनार की भांति लाल हैं। उसकी आंखें बड़ी तथा स्वप्निक हैं। वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक समाप्त करने में जुटा है, पर उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह आगे लिखने में असमर्थ है। अंगीठी के ऊपर वाली जाली में कोई आग नहीं है तथा भूख के कारण वह कमजोर हो गया है। मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा। पक्षी बोला, जिसका दिल वास्तव में बहुत नेक था। उसने पूछा, क्या मैं उस युवा नाटककार के लिए दूसरी लालमणि ले जाऊं? अफसोस, मेरे पास अब दूसरी लालमणि नहीं है, प्रिंस ने बताया। मेरे पास मेरी आंखें बची हैं। ये दुर्लभ नीलवों से बनी हैं जिन्हें भारत से 100 वर्ष पूर्व लाया गया। उसने पक्षी को आदेश दिया कि एक आंख की नीलमणि निकाल लो तथा नाटककार को पहुंचा दो। वह इसे जौहरी को बेच देगा तथा अपने लिए ईंधन खरीद लेगा और अपना नाटक पूरा कर लेगा। Dear Prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found the beautiful sphere lying on the withered violet. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. The next day, the swallow flew down to the harbor मतलब होता है बंदरगाह. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailor working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to Happy Prince. प्रिय प्रिंस, पक्षी बोला, मैं यह काम नहीं कर सकता, और वह रोने लगा। अबाबिल पक्षी प्रिंस बोला, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। इसलिए पक्षी ने प्रिंस की आंख से नीलमणि निकाल ली तथा विद्यार्थी की अटारी की दिशा में उड़ चला। वहाँ प्रवेश करना बहुत आसान था, क्योंकि छत में एक छेद था। इस छेद से वह अंदर घुस गया तथा कमरे में पहुँच गया। नवयुवक अपना सर अपनी हथेली में रखे हुए था। इस कारण से उसे पक्षी की पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई न दी तथा जब उसने दृष्टि ऊपर उठाई तो मुरझाए फूलों पर उसने सुंदर लालमणि दिखाई दी। लगता है लोग अब मेरी प्रशंसा करने लगे हैं, वह चीखा। यह नीलम भी किसी प्रशंसक ने दिया होगा। अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ, तथा वह काफ़ी खुशी दिखाई दिया। अगले दिन पक्षी बंदरगाह पहुँच गया। वह एक विशाल जलपोत के मस्तूल के सिरे पर बैठ गया तथा नाविकों को काम करते देख रहा था। मैं मिस्र जा रहा हूँ, वह चिल्लाया, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और जब चंद्रमा निकला तो वह हैप्पी प्रिंस के पास वापस पहुंच गया। I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince.
Will you not stay me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here in Egypt. The sun is warm on the green palm tree, and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her match fall in the gutter. Gutter मतलब होता है नाली. And there are all spoiled. Spoiled मतलब होता है खराब होना. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or a stocking, and her little head is bare. Bare मतलब होता है नंगा. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. Blind मतलब होता है अंधा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the little swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. इसका हिंदी होगा, मैं अब तुमसे विदा लेने आया हूँ. वह बोला. पक्षी प्रिंस ने कहा, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं ठहर सकते? शीत ऋतु आ गई है. पक्षी ने उत्तर दिया, तथा शीघ्र ही यहाँ हिमपात होने लगेगा. मिस्र में हरे ताड़ के वृक्षों पर सूर्य का ताप है, तथा मगरमच्छ वहीं मिट्टी में पड़े रहते हैं और चारों देखते रहते हैं. नीचे चौकोर मैदान में हैप्पी प्रिंस ने बताया, वहाँ एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है. उसने अपने माचिसों को नाले में गिरा दिए तथा सारी माचिसें खराब हो गई हैं. उसके पिता उसे पीटेंगे यदि वह कुछ पैसे के बिना घर लौटती है. तथा वह रो रही है. उसकी टांगों में न जुराबे हैं न ही जूते. उसका सिर भी नंगा है. मेरी दूसरी आंख नोच लो तथा उस लड़की को दे दो, फिर उसका पिता उसे नहीं पीटेगा. मैं तुम्हारे पास एक रात और ठहरूंगा, पक्षी बोला, पर मैं तुम्हारी आंख नहीं नोच सकता, फिर तो तुम अंधे हो जाओगे. अबाबिल बोला. प्रिंस बोला, मेरे आदेश का पालन करो. इस कारण पक्षी ने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली तथा उसे लेकर उड़ चला. माचिस वाली लड़की के पास से वह गुजरा तथा उसकी हथेली पर नीलमणि रख दी. कितना सुंदर यह शीशा है, छोटी लड़की बोली. वह हंसती हुई घर की ओर दौड़ चली. फिर पक्षी प्रिंस के पास लौट आया. तुम अब दृष्टिहीन हो गए हो, वह बोला, इसलिए मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूँगा. नहीं छोटे पक्षी, बेचारे प्रिंस ने कहा, तुम अवश्य मिस्र जाओ. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him a story of what he had seen in the strange land. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. So the swallow flew over the great city and saved the rich, making merry in their beautiful house, while the beggar were sitting at the gate. He flew into the dark land and saved the white faces of the starving children. Starving मतलब भूख से मरने वाले children, भूख से बहुत ज़्यादा जो भूखे हैं. Looking out listlessly at the bleak street, under the arcade of the bridge, two little boys were lying in each other, armed to try and keep themselves warm. How hungry we were, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. इसका हिंदी समरी. नहीं, मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूँगा, पक्षी बोला, तथा वह प्रिंस के गांव के पास सो गया. दूसरे दिन सारा समय वह प्रिंस के कंधों पर सवार रहा तथा उसे वे उन अजनबी स्थानों के बारे में बताता रहा जिन्हें उसने देखा. प्रिय पक्षी, प्रिंस बोला, तुम मुझे आश्चर्यजनक बातें सुनाते रहो, पर अन्य किसी भी चीज़ से अधिक आश्चर्यजनक वस्तु है नर नारियों के कष्ट. गरीबी से अधिक बड़ा कोई रहस्य नहीं होता. मेरे नगर के ऊपर उड़ो, छोटे पक्षी, तथा मुझे उसके बारे में बताओ. इसलिए पक्षी उस
विशाल नगर के ऊपर उड़ा तथा उसने धनी लोगों को अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती करते देखा, जबकि भिखारी उन घरों के दरवाजे पर बैठे हुए थे। वह अंधेरी गलियों में उड़ कर गया तथा उसने भूखे बच्चों के रक्तहीन चेहरे को देखा, जो शांत शिथिल भाव से अंधेरी सड़कों को निहार रहे थे। पुल के अर्धवृत्ताकार मेहराब के नीचे दो छोटे बालक एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े थे ताकि गर्मी महसूस कर लें। हमें बहुत भूख लगी है, वे बोले। यहाँ मत लेटो, पहरेदार चिल्लाया, और वे बालक वर्षा में बाहर निकल गए। तत्पश्चात पक्षी वापस लौटा तथा उसने प्रिंस को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। मेरा शरीर सोने के पत्थर से ढका हुआ है, प्रिंस बोला। तुम इसे टुकड़े टुकड़े करके निकाल लो तथा उसे निर्धनों में बांट दो। जीवित प्राणी सदैव यह सोचते हैं कि स्वर्ण उन्हें खुशी दे सकता है। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's face grew rosier and then laughed and played in the street. We have bread now, they cried. Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in fur, and the little boys wore a scarlet cap and skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince soldier once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Murmured भुरमुराया. Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too longer here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. At that moment, a curious crack sound inside the statue, as if something had broken. The fact is that leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. टुकड़े टुकड़े पतर पक्षी ने उखाड़ लिए। एक समय ऐसा आया जब प्रिंस नीरस तथा काला दिखने लगा। सोना जाकर उसने गरीबों में बांटा तथा बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए। वे सड़क पर हंसने खेलने लगे। अब हमारे पास खाने को रोटी है, वे चीखकर कहने लगे। फिर बर्फ गिरने लगी तथा बर्फ के बाद तुषारपात हुआ। सड़कें ऐसी दिखने लगी मानो वे चांदी से बनी हो। हर व्यक्ति ऊनी वस्त्र पहनकर घूमने लगा तथा छोटे बालक ने लाल रंग की टोपियाँ पहनी तथा बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। बेचारा छोटा अबाबिल पक्षी को अधिकाधिक ठंड लगने लगी, पर उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। उसे इतना प्यार करने लगा। जब रोटी पकाने वाले दूसरी ओर देख रहे होते तो पक्षी उनके दरवाजे के बाहर पड़े रोटी के टुकड़े उठा लेता और अपने पंखों को फड़फड़ाकर स्वयं को गर्म करने की कोशिश करता। पर अंत में उसे पता चल गया कि उसकी मौत निकट आ गई है। उसके पास मात्र इतनी शक्ति बची थी कि वह उड़कर प्रिंस के कंधों पर एक बार बैठ सके। अलविदा प्रिय प्रिंस, वह बुदबुदाया। क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? मुझे खुशी है कि तुम अब मिस्र जा रहे हो, छोटे पक्षी, प्रिंस बोला। तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक ठहरे रहे, पर अब तुम मुझे होठों पर चूम लो, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं मिस्र नहीं जा रहा, पक्षी बोला। मैं तो यमराज के घर जा रहा हूँ। मौत नींद का भाई होता है ना? और उसने प्रिंस के होठों को चूमा तथा उसके पैरों पर निर्जीव होकर गिर गया। उस क्षण एक विचित्र टूटने की आवाज़ मूर्ति के अंदर से आई, मानो कोई चीज़ टूट गई हो। तथ्य है कि प्रिंस का शीशे का बना हृदय बीच से टूट गया। बहुत भयानक पाला जो पड़ रहा था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillor. As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looked, he said. How shabby indeed, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillor,
and there is actually a dead bird at his feet. He continued, the mayor, we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of this suggestion. So they pulled down the statue of Happy Prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. Then they melted the statue in furnace. Furnace मतलब होता है भट्टी. What a strange thing, that said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on the dust heap where the dead swallow was also lying. इसका हिंदी समझ। दूसरी प्रातः तड़के ही मेयर नगर परिषद के सदस्यों के साथ नीचे मैदान में सैर कर रहा था। जब वे स्तंभ के पास से गुजरे तो मेयर ने आँख उठाकर मूर्ति को देखा। कितना भद्दा अब हैप्पी प्रिंस लग रहा है, वह बोला। बहुत ही भद्दा, सचमुच, नगर पार्षदों ने कहा, जो मेयर की बात से सदा सहमत रहते थे। तथा वे सभी मूर्ति को देखने ऊपर गए। उसकी तलवार में जड़ी लाल मणि गिर चुकी है, उसकी आंखों की मड़िया भी गायब है और मूर्ति के शरीर पर अब स्वर्ण पत्थर भी नहीं रहा। मेयर बोला, वास्तव में यह तो अब कोई भिखारी जैसा दिख रहा है। भिखारी से बेहतर नहीं, नगर पार्षदों ने कहा, और इसकी टांगों के पास एक मृत पक्षी भी पड़ा है। मेयर बोलता रहा, हमें ये घोषणा कर देना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। और नगर क्लर्क ने इस सुझाव को नोट कर लिया। इस तरह उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार लिया। चूँकि मूर्ति अब सुंदर नहीं रही, इसलिए अब उपयोगी भी नहीं रही, विश्वविद्यालय के कला प्रोफेसर ने कहा। फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया। कितना विचित्र बात है, ढलाई घर के मजदूरों के ओवरसियर ने कहा कि यह शीशे का बना हृदय तो भट्टी में गलती ही नहीं, हमें इसे फेंक देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, जहां पर मृत अबाबिल भी पड़ा था। Bring me the two most precious things in the city, said the god to one of his angels. And the angels brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise, paradise मतलब होता है स्वर्ग, heaven, this little bird shall sing forever more, and in my city of gold, the happy prince shall praise me. नगर से मुझे 2 सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुएं लाकर दो, परमेश्वर ने अपने एक देवगढ़ से कहा, तथा वह देव परमात्मा के पास शीशे का हृदय तथा मृत पक्षी उठा लाया। तुमने सही चुनाव किया है, परमात्मा बोले, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटा पक्षी सदैव अधिकाधिक गाता रहेगा तथा मेरी स्वर्ण नगरी में यह हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। और इस तरह इसका कहानी ख़त्म होता है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना।